त्याच्यातून कुठले दुसरे शहर आहेत? Hello, is sir there? Good evening, everyone. Let's just wait for 2 more minutes and let's see if everyone joins. And after everyone's joined, and then we're gonna start our lecture. Okay. Devesh Thakkar. Hello, Devesh Thakkar. Hello. You raised your hand, Devesh. Yeah, are you able to hear us? Yeah, I'm able to hear you. Yeah, okay. So I'm father of Yash Thakkar. Okay. So today is Okay, his sir. first day. Okay. We have been informed only yesterday evening that the class. Hi, Aman. How are you, Aman? Okay, fine. So let's start with our lecture. As far as I know, last topic was atomic weight, right? Oh, just 1 second. Hi, Aman. How are you? I'm fine, sir. How are you? I'm also fine. Good to see you today. Yes, sir. Okay, fine. So today let's start with our chapter. Aman, last lecture में क्या हुआ था? Hi, Omkar. Hello, Omkar. How are you? ओमकार लास्ट चैप्टर में क्या हुआ था? Yes, sir. Wait. Just let me know.
Sir, we were at the molecular weight. Okay, molecular weight and gram molecular weight. You completed molecular weight and gram molecular weight. Okay. So did every one of you guys have remembered the first 20 elements? First 20 elements क्या सबको याद है? So we have Yes, Sir. sir Sir. Sir. 30 sir till 30. कौन बताएगा फिर मुझे एलिमेंट्स का नाम? 30 आते हैं। आगे होता 30 only. थर्टी एलिमेंट्स याद है, वेरी नाइस। अब 30 एलिमेंट्स याद है तो अब मॉलिक्यूलर वेट भी हो चुका है। सो जस्ट 1 सेकेंड। आइसोटोप्स हो चुके हैं, मॉलिक्यूलर वेट हो चुका है। नाउ वी आर गोना स्टार्ट विद वैलेंसी। आज हम लोग करने वाले हैं वैलेंसी के बारे में सीख, ठीक है? सुजीत, बोलो सुजीत। Sir, we have done till isotopes. Okay, you have done till isotopes. Okay, and what about valency? So लेट्स स्टार्ट विद द वैलेंसी। ओके, अभी हम लोग जो है वैलेंसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैलेंसी इज जस्ट अ नंबर। ओके, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द वैलेंसी, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड what are radicals or ions. Okay, what are radicals or ions? एटम जो है जब उसके ऊपर चार्ज आती है, व्हेन एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन और लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, तो वो एक आयन बन जाता है। वो क्या बन जाता है? इट बिकम्स एन आयन। फॉर एग्जांपल Na, सोडियम। सोडियम व्हेन इट गेट्स अ चार्ज ऑफ पॉजिटिव, so it becomes sodium ion. Same goes for chlorine also. क्लोरीन एटम जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो इट बिकम्स क्लोरीन आयन। So if a single atom gets a charge of positive or negative, it converts from atom to ion. Now it is no more an atom, it is called ion. Okay, सबको ये चीज समझी? जब एक एटम के ऊपर कोई भी चार्ज आता है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम का देखो, यहाँ पे सोडियम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन आफ्टर पुटिंग दिस एरो तो सोडियम जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गई है, सोडियम Na+ लिखा हुआ है। सो ओके, सो ये हो गया है, इसके ऊपर आ गई है चार्ज, एंड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज इट हैज बिकम आयन। सेम गोज फॉर क्लोरीन ऑल्सो। क्लोरीन जो है वो एक एटम है, लेकिन उसके पास नेगेटिव चार्ज आ गई, Cl- बन गया, एंड आफ्टर बिकमिंग Cl- नाउ आई विल नो मोर कॉल इट एन एटम,
I will call it an iron. Okay, so now it is iron. Okay, same goes for molecule also. Molecule जो है, जब एटम जो है उसके ऊपर चार्ज आती है, तो फिर एटम जो है जब उसके ऊपर चार्ज आती है तो वो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है. वैसे ही जब ग्रुप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर चार्ज आती है तो वो रेडिकल बन जाता है. जैसे कि NH4+, अभी N नाइट्रोजन का एक एटम है, हाइड्रोजन के टोटल 4 एटम्स हैं, नाइट्रोजन का एक 4 एटम्स, इतने सारे एटम्स के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर पॉजिटिव चार्ज की वजह से मैं बोलूंगा अब ये NH4+ रेडिकल है. ओके, मैं इसको आयन नहीं बोलूंगा, इसके ऊपर चार्ज है, बट क्योंकि इट इज ग्रुप ऑफ एटम्स इसलिए मैं इसको बोलूंगा NH4+ रेडिकल. ओके, yeah, you can note down this, or maybe I will send the notes. Okay, or basically you can just take the screenshot of this also. Okay, you can basically take the screenshot also, so whatever you feel comfortable, but you have to write down these notes after taking out the after taking the screenshot, and after the lecture is completed, make sure you write down these notes. Otherwise in screenshots क्या होता है कि you get many pics through WhatsApp and all those other apps. You get many of the pics in a single mobile. तो ये pics जो है ना कहीं पीछे छूट जाते हैं, तो ये pics फिर तुम्हें बाद में नहीं मिलेंगे. So after taking the screenshot, बाद में after completing the lecture तुम लोग इसको नोट डाउन कर देना अपने बुक में, या फिर अगर किसी की हैंडराइटिंग स्पीड बहुत ही अच्छी है राइटिंग डाउन दी नोट्स, तो साइमल्टेनियसली लिखते हुए भी जाए. ओके, सो मॉलिक्यूल आफ्टर हैविंग चार्ज, मॉलिक्यूल जो है वो रेडिकल बन जाता है. तो NH4+ इज अ रेडिकल. चैट ऑन है क्या? ओके ओके ओके, नाउ यू कैन चैट विद मी ओनली. तो NH4+ इज अमोनिया, NO2- जैसे नाइट्रेट, और NO3 ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर माइनस आ जाएगी तो इट इज नाइट्रेट. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट वैलेंसी. अब वैलेंसी की लेट्स स्टडी अबाउट वैलेंसी. जब एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, हाँ अन्वेषा बोलो. आई हैव अनम्यूटेड यू अन्वेषा. How to take screenshot on laptop? There is no way to take screenshot on laptop. Sorry. साथ में फोन रखो और लैपटॉप का फोटो निकालते जाओ जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ. तो ये कर सकते हो बेसिकली. सो एटम्स जो है जब इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, इंसर्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन. प्रिंट स्क्रीन करके देयर इज सम बटन, इंसर्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन या जस्ट प्रिंट स्क्रीन. ओके, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट वैलेंसी. जब एटम्स जो है इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं तो वो रेडिकल्स बन जाते हैं. ठीक है, सो एटम्स जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तो वो नेगेटिव आयन और रेडिकल बन जाते हैं. सबको ये चीज समझी? सबको ये चीज समझी? बहुत ही इजी है, मैं फिर से बता रहा हूं. देखो एटम्स जो है on losing electron, atom on gaining electron. तो जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, हाउ दे लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, मैं बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं. एटम जो है जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, सो एटम व्हेन इट
is losing an electron. अब लूज कर रहा है, ठीक है, लूज कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, लूज कर रहा है मतलब डोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है? डोनेट। डोनेट करना क्या अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? डोनेशन इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? डोनेट करना अच्छी चीज है, सबको करना चाहिए चीजें डोनेट। तो जो डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। ओके, तो एटम जब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है तो उसके ऊपर क्या आ जाती है? पॉजिटिव चार्ज। एटम जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, गेन छीन रहा है, क्या छीनना, क्या चीजें छीनना अच्छी चीज है? किसी से कंटिन्यूसली चीजें छीनते जाओ, बिल्कुल भी नहीं। तो जो चीजें छीनता है वो क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव फीलिंग आ जाती है उसके लिए, वो नेगेटिव इंसान होता है। तो जो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स छीनते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो तुम। तो एटम्स जब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एटम्स जब इलेक्ट्रॉन्स छीनते हैं तो नेगेटिव चार्ज। ओके, अब इलेक्ट्रॉन्स जो है ये डोनेट और गेन कब करते हैं? ठीक है, तो ये कब करेंगे ये हम अभी देख रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल पहले हम लोग वैलेंसी देख लेते हैं कि वैलेंसी कैसे वर्क करती है। ओके, वैलेंसी कैसे वर्क करती है? वैलेंसी इज combining capacity of an atom और एलिमेंट। एक एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना है उसको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है लिथियम का आयन, लिथियम का एटम, ये न्यूक्लियस, दिस इज द फर्स्ट शेल। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर आता है सेकेंड शेल, लिथियम के लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये लिथियम है। लिथियम के लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, तो लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन। अब फिर से न्यूक्लियस, देन फर्स्ट शेल, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन वन मोर शेल, यहाँ पे लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये होता है बेरिलियम। लिथियम जो होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर इज 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर इज 3। उसके पास 3 प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, उसके पास 3 प्रोटॉन्स होते हैं, और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो अगर लिथियम के पास 3 प्रोटॉन्स हैं तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है फर्स्ट शेल में गए, और एक जो फाइनल इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट शेल में चला गया। ठीक है, बेरिलियम जो है लास्ट शेल में, बेरिलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर इज 4। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर इज 4। दिस 4 denotes that beryllium has 4 protons। अब उसके पास जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या सबको पता है कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स क्यों होने चाहिए? हैंड रेस करो। जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स क्यों? क्या रीजन है इसके पीछे? सबसे पहले हाथ आदित्य कुमार ने उठाया था, तो पहले मैं उससे पूछूंगा। हाँ, आद्य कुमार, सॉरी, आद्य। यस सर, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है ताकि वो एटम का एक न्यूट्रल चार्ज बने रहे। वेरी गुड आद्य, यू आर फ्रॉम विच सेंटर? खारगर। खारगर, वेरी नाइस आद्य। हम जो Thank है you. हर एक एटम का जो है जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उतना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और नेगेटिव दोनों साथ में, जितना ही नेगेटिव चार्ज होगा दोनों दे विल नलीफाई ईच अदर, एंड आफ्टर दे विल नलीफाई ईच अदर, फाइनल जो चार्ज रहेगा एक एटम के ऊपर वो होता है न्यूट्रल चार्ज। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं हुआ
अगर सपोज किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं और प्रोटॉन्स, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ जाएगी वो, और अगर किसी के पास प्रोटॉन्स ज्यादा है तो मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि वो, तो हम लोग जो है ना वो हर चीज से फिर हमें करंट लगेगा। मैंने बुक को क्या ऐसा होता है कि मैंने इस बुक को टच किया तो मुझे करंट लग रहा है? नहीं। मैंने ये पेन को टच किया, क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैंने इसको टच कर दिया, बुक को, क्या मुझे करंट लगेगा? नहीं। मैं चल रहा हूँ, तो चलने के टाइम पे मैंने क्या मुझे करंट लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सारे के सारे एटम्स जो है दे आर, तो ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, दे आर न्यूट्रली चार्ज्ड। क्यों न्यूट्रली चार्ज नहीं है सारे के सारे एटम्स? एंड इनको टच करने से मुझे करंट क्यों नहीं लग रहा है? कि इनके पास जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके वजह से मैं इनको टच कर रहा हूँ तो मुझे कोई इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं तो मुझे करंट नहीं लग रहा। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है उनका नंबर ऊपर नीचे हो गया, सेम नहीं रहा, तो मैं पेन को टच करूंगा मुझे करंट लगेगा, मैंने बुक को टच किया मुझे करंट लगेगा, मैंने ये पिल्लो को टच किया मुझे करंट लगेगा। तो ये है बेरिलियम। तो इसलिए जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेरिलियम के पास बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी जो है इट इज जस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अब बेरिलियम के बाद जो है तीसरा एटम, फर्स्ट शेल में बोरॉन। बोरॉन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो उसके लास्ट शेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेल में, 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले शेल में। बोरॉन के बाद आता है कार्बन, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस रहा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया कार्बन। फिर आया नाइट्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन्स हेयर, and then 5 electrons here, 2 3 4 5 नाइट्रोजन। उसके बाद नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन का, कार्बन 6, यहाँ इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। अब आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है उसके लास्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, ये है ऑक्सीजन 8। अब आएगा ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन, 2 electrons here, and that after that 9 electrons, 3 5 6 7 8 9, ये हो गया 9। 1 2 3 4 5 6 7, ओके 7। और उसके बाद आता है फ्लोरीन के बाद नियॉन। फर्स्ट शेल में it is always the first shell, the capacity of first shell is always 2 electrons, उसके ऊपर कभी भी फर्स्ट शेल में जो है इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा सकते। 1, वो भी बताऊंगा, उसके पीछे का भी रीजन बताऊंगा। 4 5 6 7 8, ये हो गया नियॉन 10। Now if we see properly, लिथियम जो है 3 है।
अब मुझे अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछेंगे कि बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, फिर पूछेंगे इसकी वैलेंसी। ओके, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर इसका पूछेंगे तो इसके पास फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2,1। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताओ। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। सेकेंड शेल में कितने, 2। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताओ, 2,3। सेम टू सेम हेयर ऑल्सो। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होगा, 2,4। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,5। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,6। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,7। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8। ओके, अब अगर हम लोग वैलेंसी की बात करें तो लिथियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। दिव्यांशु को डाउट है, जिसको डाउट है वो हैंड रेज करेगा, तो इट विल बी इजी फॉर हिम फॉर मी टू अंडरस्टैंड इट, तो मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा। दिव्यांशु पूछो। सर अगर लिथियम के बदले हाइड्रोजन रहता तो क्या होता आंसर? लिथियम के अगर हाइड्रोजन होता तो सेम रहता, लिथियम और हाइड्रोजन का वैलेंसी सेम रहता है। ये रहा एटम हाइड्रोजन का, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये है हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 है, तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज जस्ट 1। और सर एक और डाउट है। हाँ, सर फ्लोरीन में पहले शेल में 2 है और आखिरी शेल में 8 है, तो सर वो गेन करेगा या ये करेगा? नहीं नहीं नहीं, फ्लोरीन की नियॉन तो पूरा स्टेबल है ना, दोनों में सब एलिमेंट है, मतलब पहले वाले शेल में 2 रहता है और दूसरे वाले में 8 रहता है, तो हाँ, सर लेकिन वो फ्लोरीन नहीं है, वो नियॉन है। फ्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी भी। नियॉन। हाँ, तो वो बिल्कुल स्टेबल है, ना वो लूज करेगा ना वो गेन करेगा, वो स्टेबल है, वो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा। थैंक यू सर। ओके, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये 2,1 हो गया। अब अगर यश ठक्कर कहाँ है, यश ठक्कर, रेज योर हैंड। हेलो, Yes, sir. यश ठक्कर। Sir, I am Stuti. स्तुति बोलो। Sir, I wanted to ask that a valency cannot be more than 4, right? देयर आर सम केसेस जहाँ पे वैलेंसी मोर देन 4 होती है। हम लोग वो केसेस के बारे में एक थोड़ी सी नॉलेज भी गेन करेंगे आज। देयर आर सम केसेस, स्पेशल केसेस, एक्सेप्शंस। Okay, so these are, I mean, they are not related to the number of electrons, right? दे आर नॉट रिलेटेड टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कुछ अलग ही एक्सेप्शंस है। फिलहाल के लिए हमें इतना ही पढ़ना है, हमारे लिए इतना इज इम्पोर्टेंट। फिर भी ऐसे केसेस होते हैं, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, तो उसमें एक एक्सेप्शन ऐसा भी आएगा, मतलब एक्सेप्शन ऐसे भी हैं जहाँ पे वैलेंसी जो है मोर देन 4 भी है, लेकिन वो हम लोग अभी हमारे लिए पढ़ना इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन होते हैं। So what are the numbers that you have written? I mean, 2 and 1, 2, 2, 2 and 3. So Sorry? So here you have इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, Okay, so sir, how are they related to valency? they are not related to valency. Absolutely they are not related to valency. Actually they are kind of related to valency. अब मैं valency सिखाऊंगा तो you will come to know. Thank you.
ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट. अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे पेपर में कि बताओ बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नथिंग बट नंबर ऑफ शेल्स इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑफ द शेल्स. तो तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि 2, 2. So we don't have to You electrons and don't protons, right? you don't have to Learn the number of electrons and protons, right? yeah, you have to remember the number of electrons and protons for valency. Stuti. Okay, fine. I think she muted herself. So let's start. अभी हम लोग वैलेंसी के बारे में देखेंगे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया हमने. अब हम लोग जो है वैलेंसी देखेंगे. वैलेंसी के लिए लिथियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? बताओ, लिथियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो अब लिथियम के लिए क्या इजी है? अब हर एक एटम जो है ना वो स्टेबल होना चाहता है. वो क्या होना चाहता है? वो स्टेबल होना चाहता है. और स्टेबल होने के लिए वो चाहता है कि उसके लास्ट शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स हो. वो हमेशा यही चाहेगा कि उसके लास्ट शेल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो. 8 इलेक्ट्रॉन्स, जिस भी एटम के पास लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टेबल हो जाता है. ठीक है, तो वो स्टेबल हो जाता है. और ये सिर्फ नोबल गैस, ओनली नोबल गैसेस जो होती हैं एक्सेप्ट हीलियम, सारी की सारी नोबल गैसेस जो होती हैं उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके, तो हर एक एटम जो है वो यही चाहता है कि उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो ताकि वो स्टेबल बन जाए. Each and every atom tries to acquire the electronic configuration of its nearest noble gas. Okay, so nearest noble gas की electronic configuration acquire करने की कोशिश करता है हर एक एटम. यहाँ पे लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है. लिथियम के लिए क्या इजी है? 1 इलेक्ट्रॉन दे देना या 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना. 1 इलेक्ट्रॉन दे देना या 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना. क्या इजी है उसके लिए? इजी है 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देना. अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसकी वैलेंसी हो गई 1, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. क्योंकि वो डोनेट कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, डोनेशन इज अ गुड थिंग, तो उसके ऊपर कौन सी चार्ज आएगी? पॉजिटिव. तो उसकी वैलेंसी कितनी हुई? +1. तो लिथियम की वैलेंसी कितनी है? +1. बेरिलियम के लास्ट शेल में कितने, वो लूज करने के बाद फिर Li+ बन जाएगा. क्या बन जाएगा? Li+ आयन. Li+ आयन बन जाएगा. अब बेरिलियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. उसके लिए क्या इजी है? 2 इलेक्ट्रॉन दे देना, इलेक्ट्रॉन लेना. उसके लिए इजी है 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देना. तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? +2. तो बेरिलियम जो है वो कौन सा आयन बन जाएगा? Be++ और Be2+. दोनों ही लिख सकते हैं. बोरॉन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन से? 3. उसके लिए क्या इजी है? 3 इलेक्ट्रॉन दे देना या 5 इलेक्ट्रॉन लेना. क्या इजी है? 3 इलेक्ट्रॉन दे देना, डोनेट करना. तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? +3. ओके, तो बोरॉन जो है वो बन जाएगा Be+++ और Be3+ आयन. मैंने कहा था अगर एक ऊपर चार्ज आ जाती है तो वो आयन बन जाता है. ओके,
अरे ओके फाइन फाइन, मैं चेक कर, सुनो मैं चेक कर रहा था किस किस का ध्यान है नहीं है. दिस इज बी ओनली. अनम्यूट किया हुआ है, जिसका भी डाउट है पूछो. Sir, are valences written in plus minus? फिलहाल के लिए हाँ, वैलेंसीज जो है वो प्लस माइनस में. ओके सर Okay, sir. फॉर नाउ वैलेंसी जो है हम लोग प्लस माइनस में डिनोट करेंगे. आगे चल के हम लोग ये देखेंगे कि वैलेंसी इज जस्ट अ नंबर, वो हम लोग आगे चल के देखेंगे. के लिए वैलेंसीज को अभी हम लोग प्लस माइनस के साथ डिनोट करेंगे. ओके एक एक स्टेप बढ़ेंगे, दो दो स्टेप, तीन तीन स्टेप बढ़ेंगे तो. सर एक डाउट है सर. सर जब इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर रहे हैं तो सर वो इलेक्ट्रॉन जा कहाँ रहा है? एक एटम Sir, your voice is cracking, sir. are you able to hear me right now? Yes, sir. Now able. Okay, so just after we complete this valency topic, इसका directly बाद we will discuss about where are these electrons going. Okay? Okay. Yes, sir. Thank you. Yeah. मैंने दूसरों को भी अनम्यूट कर दिया है. अनम्यूट किया हुआ है मैंने. Yes, sir. हाँ. My doubt was that one second. हाँ बोलो. Yes, sir. If a particular atom loses an electron, so the valency will be negative, right? Yes. So we will. If it loses an electron, मतलब वो छीन रहा है, और छीन रहा है तो मतलब negative. छीनना is bad thing. Negative. Okay. So we will do examples like this, right? I mean. Yeah, we are going to do examples. First, you should understand कि कौन से atom की कौन सी valency होती है, and after this we will do the sums also. Oh shit! Just 1 second. तो अभी अगर जमाने रख देंगे तो हो जाएगा ना थोड़ी देर में. जमा दो ना. Seriously? क्या हुआ? नहीं मैं कुछ सीरियसली सर ने मुझे अनम्यूट छोड़ दिया एंड खुद चले गए एंड आई एम द ओनली वन अनम्यूटेड राइट नाउ एंड समबडी एल्स इज द होस्ट. I'm the only one unmuted. People did sir leave. The only one unmuted. Why am I asking?
दूसरी बार हो रहा है केमिस्ट्री क्लास में। आई होप कुछ मस्ती नहीं हुई, मैं तो किसी ने कुछ मस्ती नहीं की। ओके 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 फाइन। चैट वाज डिसेबल्ड, फिर से वो ऑन हो गई है। ओके या सो बेसिकली मैंने म्यूट कर लिया है। आई होप सबको मेरी आवाज आ रही है। सो दिस इज कार्बन। ओके कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके तो अब कार्बन के लिए क्या इजी है, 4 इलेक्ट्रॉन दे देना या 4 इलेक्ट्रॉन्स लेना? दोनों ही इक्वल मेहनत का काम है, दोनों में ही इक्वल मेहनत लगने वाली है। तो इसलिए कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो हो सकती है +4 या फिर दोनों में से कुछ भी हो सकती है, बिकॉज दोनों ही पॉसिबल है उसके लिए। नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूल कि वो कौन से एटम के साथ रिएक्शन कर रहा है, कि उस जिस एटम के साथ वो रिएक्शन करेगा उस रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे। ओके वो टोटली डिपेंड्स ऑन द केमिकल रिएक्शन। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाइट्रोजन जो है उसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब नाइट्रोजन के लिए क्या इजी है, 5 इलेक्ट्रॉन दे देना या 3 इलेक्ट्रॉन लेना? उसके लिए इजी है 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी है। तो अब वो छीन रहा है, गेन कर रहा है, दे नहीं रहा, डोनेट नहीं कर रहा, गेन करने की कोशिश कर रहा है। तो बुरी बात है, छीनना इज अ बुरी बात। तो -3 6 इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। क्या इजी है उसके लिए, 6 इलेक्ट्रॉन दे देना या 2 इलेक्ट्रॉन लेना? 2 इलेक्ट्रॉन लेना उसके लिए इजी है। अब वो ले रहा है, छीन रहा है, तो -2। फ्लोरीन, उसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है छीनेगा, तो -1। नियोन, लास्ट शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको चाहिए भी 8 ही स्टेबल होने के लिए, ये ऑलरेडी स्टेबल है, इसकी वैलेंसी होगी 0। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 0। कार्बन जो है वो आयन बनाएगा C4+ और C4-। नाइट्रोजन जो है वो आयन बनाएगा -, और N3-। ऑक्सीजन जो है वो बनाएगा O
माइनस माइनस और O2 माइनस। फ्लोरीन, फ्लोरीन जो है वो आयन बनाएगा F माइनस। नियॉन कोई भी आयन नहीं बनाएगा, नथिंग। नियॉन किसी के साथ भी कंबाइन नहीं होगा। हीलियम, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, ये सारे के सारे नोबल गैसेस हैं। ये सारे के सारे क्या है? नोबल गैसेस। हीलियम जो है, हीलियम भी स्टेबल है, नियॉन भी स्टेबल है, जेनॉन भी स्टेबल है, क्रिप्टॉन भी स्टेबल है। इन सब के लास्ट शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बाकी सब ऑक्टेट रूल फॉलो, ऑक्टेट है, मतलब ऑक्टेट का मतलब लास्ट शेल में 8, ऑक्ट 8। हीलियम जो है वो डुप्लेट है, डुप्लेट मतलब 2, तो उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, अनम्यूट कर रहा हूं चैट में। अनम्यूटेड, 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 सबको अनम्यूट कर दिया, बोलो। Sir, what is the valency of nitrogen? The valence is 3, -3। ये रहा। Okay, sir. Sir, हाँ, sir, बोलो। what is the valency of hydrogen? वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज, अब हाइड्रोजन जो है वो या तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा कंप्लीटली, या फिर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि ये नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेगा। इसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है? हीलियम। हीलियम के लास्ट शेल में कौन सा कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2, जो कि स्टेबल है। तो हीलियम का स्ट्रक्चर ऐसा है, उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेने की भी कोशिश, इक्वली मेहनत लगेगी इसको। ये एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो यहाँ पे जो है ये -1 भी होगा, +1 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज एन एक्सेप्शन, जस्ट लाइक। Thank you, sir. हाँ, ओके। और कोई है तो, नहीं तो फिर म्यूट, माइक बंद करके हैंड डाउन, हैंड्स डाउन। सबको अनम्यूट कर दिया, पूछो। सर मुझे ये डाउट था कि अगर हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो फिर हाइड्रोजन का क्या होगा? वो खुद में सिर्फ एक प्रोटॉन बन जाएगा ना, वो जो हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ एक प्रोटॉन रहेगा फिर। ओके, हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन भी नहीं होता, तो सिर्फ वो खुद में एक प्रोटॉन रहेगा सिर्फ। सर लेकिन अगर वो एक एलिमेंट है तो फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना? वो एक एलिमेंट है इसलिए तो उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है। हाइड्रोजन एक अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसके पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, ऑलरेडी उसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता। तो अच्छा। अगर आप इलेक्ट्रॉन भी उससे छीन, सिर्फ बचा क्या? प्रोटॉन। ओके, हाँ सर, समझा? हाँ सर, थैंक यू सर। Sir, I wanted to ask that what is the connection between valency and hydrogen, because I have read in many books and there is some connection between hydrogen and valency. Of course, there is some connection between valency and hydrogen. Once we are done with this, हमारा next जो definition जो है वो हाइड्रोजन के बेस पे है। वैलेंसी को भी हम लोग डिफाइन करेंगे on the basis of hydrogen. Just wait for 5-10 minutes more and then we will define the valency via hydrogen. मतलब हाइड्रोजन के थ्रू हम लोग वैलेंसी को डिफाइन करेंगे। ओके, सबको ये चीज समझ गई वैलेंसी की? अगर तो तुम सबके लिए होमवर्क है, 11 से 20 एलिमेंट्स तक का सेम टू सेम वैलेंसी, 20 नहीं, 11 से लेके, जस्ट 1 सेकेंड, 11 से लेके 17, 11 से लेके 17 एलिमेंट्स तक का तुम लोग डायग्राम बनाओगे।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और वैलेंसी लिखोगे 11 से 17 तक का। ओके, बस ये तुम्हारा होमवर्क है। लेक्चर कितने बजे तक है? 7:15 ना? ओके 7:15 है। ये चीज समझ में आ गई। अब एक दो जनों का डाउट था कि सर ये इलेक्ट्रॉन्स जाते कहाँ पे हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स जाते कहाँ पे हैं सर, ऐसा पूछ रहे हैं मुझसे, तो मैं बताता हूँ। ठीक है, आद्य ने बिल्कुल सही आंसर किया है, दे आर टेकन बाय अनदर एटम। जब Yes, एक sir. एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो इट इज टेकन बाय अनदर एटम, और इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं और कंपाउंड फॉर्म होता है। ओके, Yes. नाउ फॉर एग्जांपल सोडियम Na, ठीक है। अब Na जो है, Na का हम लोग मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये न्यूक्लियस है। दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं। सेकेंड ऑर्बिट, यहाँ पे जो है इसके पास कितना रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे सोडियम के पास सेकेंड शेल में। फिर थर्ड शेल में जो है वो सोडियम के पास रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये है 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का कितना है, 2,8,1 2,8,1 ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का। अब मैं यहाँ पे क्लोरीन लेता हूँ, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन। दिस इज Cl। ओके, ये है, इसका है 2,8,7। ठीक है, अब मैंने ये फाइंड कैसे किया कि इसके पास जो है फर्स्ट शेल में 2 होंगे, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 1। It goes by the formula of Bohr. There was a scientist called Bohr. ठीक है, तो बोर ने जो है एक फॉर्मूला दी थी विच इज कॉल्ड 2n²। बोर ने जो है एक फॉर्मूला दी थी विच इज कॉल्ड 2n²। ठीक है, where n is equal to shell number, where n is equals to shell number। ठीक है, तो इसको हम लोग शेल बोलते हैं, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, या फिर फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ऐसे बोलते हैं। तो अगर मुझे जानना है कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, तो मैं कैसे जानूंगा? आई विल पुट 2n² फॉर्मूला। मुझे फर्स्ट शेल के बारे में जानना है, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम जाएंगे, तो n की वैल्यू में डालूंगा 1, इसका करूंगा स्क्वायर, तो 2 1 जा 2। तो फर्स्ट शेल में जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? फिर मेरे से सपोज पूछते हैं बताओ सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो अगेन आई विल पुट इट एज 2 मल्टीप्लाइड बाय
सेकंड शेल है, सेकंड, तो n की वैल्यू कितनी होगी 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स गए। फिर मेरे से पूछेंगे बताओ थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने जा सकते हैं, तो अगेन 2n स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 which is 18 electrons. It's in third shell. अच्छा ठीक है, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो अब थर्ड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं 18, लेकिन मेरे पास कितने हैं, मेरे पास तो सिर्फ 11 ही है। 2 यहाँ पे गए, 8 यहाँ पे गए, और उसके बाद मैं यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम डाल सकता हूँ, लेकिन मेरे पास है ही सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा, ज्यादा तो इससे ज्यादा तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला जो है ये हमें बताती है कि हर एक शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 2, 8, 18, 32, 50। फर्स्ट शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सेकंड शेल में 8 जाएंगे, थर्ड शेल में 18, और उसके बाद 32, और उसके बाद 50। इस जरूरत नहीं है, इसके ऊपर कोई भी आइटम, मतलब इसके ऊपर कोई भी आइटम हम लोग नहीं पढ़ने वाले जिसके लास्ट शेल में 50 इलेक्ट्रॉन्स हो। क्लोरीन का वैलेंसी क्या होगा, बिल्कुल सही, क्लोरीन का वैलेंसी अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखें तो सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन के लिए क्या इजी है, 7 इलेक्ट्रॉन दे देना या 1 इलेक्ट्रॉन लेना, क्या इजी है क्लोरीन के लिए, तो क्लोरीन के लिए इजी है गेन करना, तो क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा। सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के लिए क्या इजी है, 1 इलेक्ट्रॉन दे देना कि 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना, सोडियम के लिए इजी है 1 इलेक्ट्रॉन दे देना, तो सोडियम अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन, और फिर सोडियम का शेप कैसा बन जाएगा, सोडियम का शेप बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लास्ट शेल में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सेकंड शेल, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2,8, 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसने इसको दे दिया, तो बेचारा क्लोरीन जो है दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और इसके पास आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसके पास लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। इसके पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये स्टेबल हो गया, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये 8 इलेक्ट्रॉन आ जाने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2,8,8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दोनों में 8 है, ठीक है। तो इसका हो गया 2,8,8, और ये हो गया क्या, स्टेबल। अब क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये क्या बन गया, Na+, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से छीना, तो ये बन गया Cl-, सोडियम की वैलेंसी +1, क्लोरीन की वैलेंसी -1, ओके, तो Na+ और Cl- बन गया यहाँ पे, नाउ इट इज नो मोर Na, नाउ इट इज Na atom, it is Na+ ion, now it is no more chlorine atom, now it is chlorine ion, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज आ गया है। अब पॉजिटिव नेगेटिव, व्हाट,
अट्रैक्ट ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, इनके बीच में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अप्लाई होगा, पॉजिटिव जो है नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और ये दोनों साथ में मिल जाएंगे और क्या बना देंगे, NaCl which is salt. ओके सबको समझा? Yes, sir. गुड। अनम्यूट किया हुआ है सबको, जिसको डाउट्स है पूछो। सर मुझे ये पूछना था कि वो जो बोर ने ये दिया है फॉर्मूला 2n² का, बिल्कुल सही। वो प्रूव कैसे किया? वो अभी एट प्रेजेंट जो है हम वो नहीं देखेंगे। एक्चुअली में ये 2n² बस फॉर्मूला याद रखो और प्रूव ये हम लोग बाद में देखेंगे। एट प्रेजेंट दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट कि उसने प्रूव कैसे किया, इट इज जस्ट 2n²। क्योंकि बेसिकली वो प्रूव की बात नहीं है, बेसिकली उसने ये इलेक्ट्रॉन्स देखे कि ये इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट में 2 है, फिर 8 है, फिर दूसरे में जो है मैक्सिमम 80 नहीं जा पा रहे हैं, तो वो ऑलरेडी हो रहा था, उसने बोला कि ऐसा क्यों, मतलब इसको मैं किससे रिलेट कर सकता हूँ, ऐसी कोई तो चीज होगी जिससे मैं इसको रिलेट करूं। तो बाद में उसने देखा कि हाँ अगर मैं 2n² की फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो ये एक्चुअली में सही रुक रहा है। तो उसने बस तो ये सोच के कि एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स इस फॉर्मूला से सही रुक रहे हैं, उसने ये सोचा और बना दी फॉर्मूला। ओके सर। ये फॉर्मूला है, इसके वजह से ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी वजह से बोर्ड ने जो है ये फॉर्मूला सोची। ओके सर। और बोलो सर, यार। हाँ सर हाँ बोलो। सर इन द आपने जो डायग्राम बनाया है वो सोडियम और क्लोरीन का, उसमें पहले तो आपने वो थर्ड शेल होना चाहिए ना जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स एक होना चाहिए। वेरी नाइस वेरी नाइस। मैंने जानबूझ के मिस्टेक की, मैं देख रहा था किस किस का ध्यान है, बस इसका ही ध्यान गया मतलब। एंड सर आपने वो दिखाया है कि एक इलेक्ट्रॉन है दोनों शेल में, एक ही इलेक्ट्रॉन है सर, वो तो शेयरिंग से नहीं वो सब भूल जाओ, वो मैंने ऐसे ही कर दिया, मैंने ये हटा दिया और प्लस कर दिया बीच में। ओके सर। हाँ वो शेयरिंग कुछ भी नहीं, भूल जाओ वो सब। ओके सर। हाँ तो मैंने ये ऐसे ही प्लस, मैंने वो हटा दिया और मैंने ये बीच में प्लस लिखा हुआ है सिर्फ, +Cl NaCl। और कोई? Sir, my doubt is, you said that in the third shell there should be 18 electrons, but you said that How is it stable at 8? It should be stable at 18, right? It should be 18 if the element is in its ground state. अगर वो खुद के ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट मतलब अगर उसके पास ऑलरेडी 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं कंपाउंड बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, उसके पास ऑलरेडी एज एन एटम उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए स्टेबल होने के लिए। बना रहा हूँ तो एटम जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स ही स्टेबल होने के लिए लेगा, ना कि 18। अब यहाँ पे इसके पास सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो कंप्लीट करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा, ये करने की कोशिश करेगा कंपाउंड में। तो इसको हम लोग ऑक्टेट रूल बोलते हैं। दिस रूल इज कॉल्ड, ये बोर ने दिया ऑक्टेट रूल, बोर ने नहीं दिया था, किसी और ने दिया था, लेकिन दिस रूल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि हर एक एटम जो है अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने की कोशिश। तो अगर कोई एटम में चार मतलब कोई इलेक्ट्रॉन में 4 शेल है, तो फिर चौथे शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स तो भी स्टेबल काउंट होगा। अगर चौथे शेल में क्या है? 8 वो इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ वो स्टेबल काउंट होगा। वो स्टेबल, अगर उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो स्टेबल काउंट होगा, बिल्कुल स्टेबल काउंट होगा। हाँ होगा। So that means in the last shell, if there are 8 electrons in any last shell, then it will be stable, right? It will be stable, बिल्कुल। 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल रहेगा। कोई भी एटम जो है 18 या 32 इलेक्ट्रॉन्स करना लेने की कोशिश नहीं करता। 18 या 32 इलेक्ट्रॉन्स बनाने की कोशिश नहीं करता इन द लास्ट शेल। So that means there is no अगर ग्राउंड स्टेट में ऑलरेडी अगर उसके पास मतलब
मैक्सिमम जो है, ये मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम वो कितने रख सकता है। मैंने जो 18 और 32 बोला है वो मैंने मैक्सिमम बोला है कि मैक्सिमम उसमें इतना जा सकता है। लेकिन अगर उसके पास 6 या 7 है तो वो स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स ही लाने की कोशिश करेगा इन द लास्ट शेल। वो मैंने मैक्सिमम बताया था कि मैक्सिमम इतने हो सकते हैं। So that means in the third shell, if there are 18, then it will like donate 10. क्या 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 फिर से बोलो। If there are 18 in the third shell, इन द थर्ड 18, शेल then the should be then stable. it will no more react only. हाँ Okay, so it will be like okay, got it. हाँ, it will no more react only। और अगर वो, हाँ बेसिकली यही होता है। और डिटेल में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही समझो कि लास्ट शेल में हमेशा कंपाउंड बनाने के टाइम हमेशा वो 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने की कोशिश करता है। डिटेल में वी विल स्टडी अबाउट दिस इन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मैंने अनम्यूट तो किया हुआ है सबको, जिसको जिसका डाउट क्लियर हो गया। सर हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे साइड में जो भी चीज बने हुए सब एटम्स के बने हुए सर। निकलता होगा जब इलेक्ट्रॉन वो लूज करता होगा तो उसे फिर वो इलेक्ट्रॉन जाता कहाँ होगा? क्या क्या सर हमने पढ़ा था कि जो भी चीज हम जो भी देख रहे हैं सब एटम का बना हुआ है सर। तो सर जब वो कभी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो फिर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा सर? तो जो भी चीज, क्वेश्चन समझा ही नहीं मुझे सर कोई भी चीज है सर वो सब एटम्स के बने रहते हैं सर। दुनिया में हर एक चीज एटम की बनी हुई है। तुम, मैं, जब वो लूज करते होंगे इलेक्ट्रॉन तो वो कहाँ जाता होगा सर? और सर इससे कहाँ जाता होगा वो इलेक्ट्रॉन? तो वो दूसरे एटम के पास चले जाता है। मैंने अभी वही तो दिखाया। सर वो जरूरी नहीं है ना कि वही एक एटम में जाना, कोई और में भी जा सकता है। सर हाँ बोलो। नाइट्रोजन के आयन को हम N3- से रिप्रेजेंट करते हैं ना? बिल्कुल सही। तो फिर हम उसे N-3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाँ N3- या -3 मैंने उसको उसी से तो रिप्रेजेंट किया था। अगर ठीक से देखोगे तो N3- से ही रिप्रेजेंट किया था। 3 बार माइनस लिखा था, यहाँ तो फिर 3- किया था। हाँ सर और एक डाउट है। हाँ बोलो। सर एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है या एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कभी भी इक्वल डिस्टेंस की बात ही नहीं उठती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक जगह पे रहते ही नहीं है। दे ऑलवेज मूव सर्कुलर मोशन में। तो ओके सर्कुलर सर। मोशन में घूमते रहते हैं। हाँ थैंक यू सर। या और कोई है क्या? सर हीलियम के पास जीरो वैलेंसी कैसे हो सकती है, मतलब कैसे है? क्योंकि हीलियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हीलियम अकेला खुद ऐसा अकेला एटम है जो डुप्लेट रूल फॉलो करता है। डुप्लेट रूल का मतलब उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि स्टेबल है, कंप्लीट है, स्टेबल है। वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोशिश नहीं करता। अच्छा थैंक यू सर। हाँ Sir, हाँ sir, I have read in many books that there are infinite orbits in an atom. So does this for 2n² work in each and every orbit? दिस 2n² वर्क्स फॉर ईच एंड एवरी ऑर्बिट। और ये चीज गलत है कि हर एक एटम के पास इनफिनिट ऑर्बिट्स होते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। एन एटम कैन हैव एज मेनी ऑर्बिट्स एज मच इट हैव इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। जितने पास उसके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रहेंगे उसके उतने ऑर्बिट्स रहेंगे। और ये एन एटम हैज नहीं, एटम जिसके पास इनफिनिट ऑर्बिट्स हो, ऐसा। एवरी एटम कांट हैव इनफिनिट ऑर्बिट्स, बट एन एटम कैन हैव इनफिनिट ऑर्बिट्स। कैन, हो सकता है।
हर एक एटम के साथ नहीं होता, ठीक है। जैसे कि अगर किसी के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है तो पहले फर्स्ट शेल में जाएगा, फिर सेकंड शेल में जाएगा, फिर थर्ड शेल में जाएगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन चलते जाएगा। लेकिन क्या ये ऐसा सोडियम में होता है? नहीं, सोडियम में थर्ड शेल पे आके इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाते हैं। Yeah, okay. Thank you, sir. Sir, हाँ बोलो। Sir, I had a doubt that you said that all electrons move in a circular motion. So, like, do they have a similar speed or they all have different speeds? स्पीड उनकी जो है वो उनकी सेम रहती है। सर्कुलर मोशन में उनकी स्पीड वो बहुत ही फास्ट घूमते हैं, वो बहुत ही फास्ट, मतलब अर्थ, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि मतलब जब हम देख भी नहीं पाए वैसी स्पीड रहती है उनकी। मतलब ये ऐसा घूमेगा, मतलब ये घूमेगा तो ऐसे घूमेगा कि मतलब 300 या उससे भी ज्यादा मैं सोच भी नहीं सकता, मैं ऐसा नंबर सोच भी नहीं सकता बेसिकली। 800 रोटेशंस पर मिनी सेकेंड, ऐसा काइंड ऑफ, उससे भी ज्यादा। Okay, sir. Thank तो you. इतना फास्ट होती है उनकी। सर, हाँ ये हमने NaCl का जैसे हमने ये किया, अगर Na के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और Cl के पास एग्जैक्टली एक इलेक्ट्रॉन कम है टू गेट स्टेबलाइज्ड, ऐसे अगर दूसरे कोई सेपरेट दो एलिमेंट्स का हम लोग करेंगे तो उसका भी कंपाउंड ही बनेगा ना? बिल्कुल सही। जैसे कि जैसे हम लोग ले सकते हैं BeCl2, ठीक है। तो BeCl2 में भी एक ये समझ नहीं आया, H2O का वो कैसे किया जाता है फिर? अगर H की वैलेंसी ही 0 है तो H2O का कैसे किया गया? नहीं, H की वैलेंसी 1 है, H की वैलेंसी 0 क्यों हो गई? 0 वैलेंसी सिर्फ नोबल गैसेस की होती है। He की 0 है। हाँ सॉरी, He की 0 है। हाँ बिल्कुल, He की 0 है, H की तो 1 है ना वैलेंसी। और किसी ने शायद ये ऑलरेडी पूछा है, हम लोग H हाइड्रोजन को रिलेट करके कभी-कभी वैलेंसी निकालते हैं, तो वो कैसे करते हैं? अभी अगर पहले मुझसे पूछा था कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे, तो मैंने अभी तुम्हें बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जाते हैं और कंपाउंड बन जाता है। तो बेसिकली मैंने अभी ये समझा दिया। अब हम लोग जो है ये पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन के रिलेटेड। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है। तो ओके, तो बेसिकली सबको समझ में आ गया ना कि इलेक्ट्रॉन्स जाते कहाँ पे हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम से दूसरे एटम में जाते हैं और उनके बीच में जो है एक कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। ये पॉजिटिव आयन बन गया, ये नेगेटिव आयन बन गया। पॉजिटिव आयन जो रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज्ड जो रहते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कैटायंस। उन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज्ड वालों को बोलते हैं हम लोग कैटायंस, और इनको हम लोग बोलते हैं एनायंस। ओके, तो ये इनको हम लोग कैटायंस बोलते हैं और इन्हें हम एनायंस बोलते हैं, जो गेन करते हैं। ये समझ में आ गया। अब तुम्हें ये भी समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन्स जाते कहाँ पे हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वैलेंसी का एक और टॉपिक हाइड्रोजन के रिलेटेड है कि वैलेंसी को अभी हम डिफाइन करेंगे हाइड्रोजन की तरफ से। सर, हाइड्रोजन भी डुप्लेट रूल को फॉलो करता है ना? हाइड्रोजन डुप्लेट को ही फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन छीन, या तो फिर अपना वो एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दे भी देगा, तो कोई उसके पास इलेक्ट्रॉन भी नहीं रहेगा। हाँ ओके सर। ओके, और कोई है क्या? सर मेरा डाउट था एक्चुअली वो ऑक्सीडेशन नंबर को लेकर। उसमें था कि ई बुक में ऐसा नंबर। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से आया? सर वो ई बुक में था। छोड़ो, मैंने नहीं पढ़ाया है, मत पूछो, जब आएगा तब पूछना। ओके सर। और सर, if we can say that an element or an atom can have in infinite shells or orbits, then we can also say that the digits in a configuration, electronic configuration value can also be infinite. देखो, पहले ये इन्फिनिट वाली बात तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि एन एटम कैन हैव इन्फिनिट नंबर ऑफ शेल्स। ओके, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है।
एटम्स के पास एक पर्टिकुलर एक एटम के पास एक नंबर ऑफ शेल रहेगा ही, मतलब एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेल्स रहेगा। फिर वो उसके पास 5 शेल हो, 6 शेल हो, 8 शेल हो, 10 शेल हो, 15 शेल हो, कितना भी हो, लेकिन उसके पास एक शेल मतलब वो एक फिक्स्ड शेल नंबर रहेगा। ठीक है। ओके। हाँ, तो ये जो चीज जो है ना कि एक एटम के पास इनफिनाइट नंबर ऑफ शेल्स हो सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है, नहीं हो सकता ये। ओके सर। ओके। और कोई? ये हाथ तो यार नीचे जा ही नहीं रहे। तनिष्का को अनम्यूट किया और प्राप्ति को भी। सर हाँ हाँ बोलो। सर इसके पहले जो नाइट्रोजन का किया था ना सर, नाइट्रोजन इससे पहले कौन सा किया था नाइट्रोजन? ये हाँ सर। सर वो -3 कैसे आया? -3 कैसे आया वो नंबर? नाइट्रोजन जो है उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। हाँ 5। 5 electrons are present in the last shell of the nitrogen. And अब नाइट्रोजन के लिए क्या इजी है? अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स दे देना या 3 इलेक्ट्रॉन लेना, क्या इजी है? 3 इलेक्ट्रॉन लेना इज इजी। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन छीनेगा अपना ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट करने के लिए। लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। सर बट वो 3 इलेक्ट्रॉन किससे आया? वो 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से आएगा जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन देने के लिए रहेंगे। जैसे NaCl में, मैंने वही तो बताया, जैसे NaCl में Cl को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो उसको उसने छीना। किससे छीना? Cl ने Na से छीना, क्योंकि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था लास्ट शेल में। हाँ सर। तो उसने इससे छीन लिया क्योंकि सोडियम को देना था और Cl को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो सोडियम ने बोला ले ले, मुझे भी स्टेबल होना है, तू ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो मेरे उसके अंदर वाले शेल पे तो 8 इलेक्ट्रॉन है ही है, तो मैं भी स्टेबल बन जाऊंगा और मेरा 1 इलेक्ट्रॉन तू ले लेगा तो तू भी स्टेबल बन जाएगा। तो सोडियम ने उसको दे दिया, क्लोरीन ने उसे छीन लिया। तो 2 एटम्स ने एक दूसरे को हेल्प कर ली। सेम टू सेम हेयर ऑल्सो। नाइट्रोजन जो है उसको जो है 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो दूसरे एटम से जिसको 3 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे उससे क्या करेगा? वो छीन लेगा। हाँ, और वो दूसरा वाला एटम जो है वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा ताकि वो खुद भी स्टेबल हो सके। ओके सर, इसका वो नेक्स्ट पेज दिखाओ ना। हाँ ये हाँ सर, मैंने ये लिखा नहीं था। ओके फाइन। व्हाट्स योर नेम? सर तनिष्का। ओके तनिष्का। सबको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। अनम्यूट किया है सबको? क्लोरीन में हेलो सर। कैसे आया सर? क्या? क्लोरीन में 288 कैसे आया सर? क्लोरीन 28 यहाँ पे 2 है। सॉरी सर समझ गया समझ गया ना? बिल्कुल सही, वेरी गुड। अब अनम्यूट कर लो जल्दी। सर एक जना हो गया। प्राप्ति को म्यूट कर रहा हूँ मैं। थैंक यू। Sir, do we have to send that homework on WhatsApp group? Please, bye bye. Bye. हर्षी मोदी पूछो। when was this Bohr formula invented? Just 1 second. हर्षी, which formula? This Bohr formula. Bohr formula बना हुआ था almost 300 to 500 years back. And sir, I want to answer the question of the speed of electrons motion. The answer is that the speed of electrons motion is 2200 kilometers per second.
देखो, हाँ बिल्कुल सही। देखो इतनी स्पीड होती है, हर्षी ने बता दिया। कहाँ सर्च किया हर्षी? गूगल पे। नहीं, मैंने ये पहले पढ़ा था। वेरी नाइस हर्षी। विच सेंटर? थाने। हाँ, थाने सेंटर। विच सेंटर? थाने। थाने। थाने इज अ वेरी नाइस सेंटर। ओके सर, थैंक यू। या सर आई हैव अ डाउट। सर आपने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी स्पीड होती है कि हम देख भी नहीं सकते, तो हम साइंटिस्ट ने कैसे देख लिया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सर पर वो तो बस जूम करता है ना, थोड़ी ना वो स्पीड मतलब इलेक्ट्रॉन्स को इतनी स्पीड। तो उनके पास स्लो मोशन कैमरा भी है साइंटिस्ट के ओ पास। अच्छा, थैंक यू सर। हाँ ठीक है। और कौन है? आयुष्मान को अनम्यूट किया है, कुछ पूछना है आयुष्मान? सर अगर बोर फॉर्मूला ना होता तो हम कैसे निकाल सकते थे? बोर्ड फॉर्मूला नहीं होता तो तुम्हारे लिए तुम्हारे चैप्टर में से एक टॉपिक कम हो जाता, तो पढ़ते ही नहीं तुम लोग। तो समझा? हाँ सर। हाँ। और कौन है? अनम्यूट किया हुआ है आरुष को। सर बोर फॉर्मूला तो 1913 में बना था। वो गूगल पे अगर सर्च करोगे तो बताता है कि 1913 में बना था। ओके। आपने बोला 300-500 साल पहले का है। 1913 तो 19th सेंचुरी कितना हो गया? ऑलमोस्ट 100 ईयर्स। 107 years। 107, हाँ 200 ज्यादा हो गया। अब एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता था। ओके सर। हाँ तो 113 ईयर्स ही हुए हैं, 200 नहीं हुए हैं। ओके, लेकिन स्टिल 113 इज अ बिग नंबर। एक सेंचुरी हो गई है पूरी, उससे ज्यादा ही हो गई है। अनम्यूट कर दिया है, और किसी को डाउट्स हैं जल्दी? Sir, do we have to send the homework on WhatsApp group? यस। लेकिन नहीं यार, व्हाट्सएप पे भेजोगे? हाँ ठीक है, भेज दो। 11 से लेके 17 तक का, 18 19 20। Sir, on हाँ doubts group में। हाँ डाउट्स ग्रुप पे भेज देना, ठीक है। 11 से लेके 18 तक का जैसे मैंने बनाया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी और आयन का उसको एज आयन सब चाहिए। 11 to 17। हाँ 11 to 17। और कौन है? अनम्यूट किया हुआ है सबको। सर आपने मेरा डाउट ही नहीं लिया। हाँ कौन सा डाउट है, पूछो। सर ऐसा कोई मेथड है क्या जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितने ऑर्बिट्स होंगे एटम के? हाँ बिल्कुल है। सर तो आप मेथड बताओगे? हाँ वो एक्चुअली में मैटर नहीं, वो तो लॉजिक है यार। जितना उसका एटॉमिक नंबर है उसके पास उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ऑर्बिट बनाते जाओ जब तक वो इलेक्ट्रॉन्स खत्म नहीं होते। यही तो मेथड है। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11। सोडियम का इज 11। तो अब इलेक्ट्रॉन्स बनाते जाओ, ऑर्बिट्स बनाते जाओ जब तक इलेक्ट्रॉन्स खत्म नहीं होते सारे। फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। फिर सेकंड शेल आया, सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही जा सकते हैं। तो सेकंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। अब मैं गिनूंगा कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो चुके हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स जा चुके, फिर उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स जा चुके, तो टोटल 8 + 2 10। लेकिन सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11। तो मुझे एक और शेल बनाना पड़ेगा, तो मैं एक और शेल बनाऊंगा और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा। ठीक, समझ में आ गया। हाँ समझ आ गया मुझे। समझ आ गया ना? हाँ बस सिंपल तो है, इलेक्ट्रॉन्स डालते जाओ जब तक ऑर्बिट मतलब इलेक्ट्रॉन्स है तब तक ऑर्बिट बनते जाएगा। ठीक है सर। हाँ तो मैं बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन को कोई जगह नहीं मिलती कोई और एटम में जाने की, तो वो इंडिपेंडेंटली रह सकता है क्या? क्या फिर से बोलो। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को कोई एटम में जाने की जगह नहीं मिलती है तो फिर वो इंडिपेंडेंटली रह सकता है एटम के बाहर? एटम को अगर इलेक्ट्रॉन में क्या करने की जरूरत पड़ती है?
जब एटम इलेक्ट्रॉन को अब भेजता है मतलब वो करने के लिए स्टेबल करने के लिए खुद को, तो फिर इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजता है। और हाँ अगर कोई एटम उसको नहीं लेता है तो फिर मतलब वो इंडिपेंडेंटली रह सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते हैं। अगर उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स गिव एंड टेक कर लिए तो वो हमें उनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, और वो हमेशा मिलके एक कंपाउंड बना लेंगे वो। अच्छा ठीक, समझा? तो वो फिर इंडिपेंडेंट निकाल नहीं सकता वो उसको, मतलब कोई नेगेटिव चार्ज करने को मिलता है तो वो निकाल ही नहीं सकता इलेक्ट्रॉन। हाँ, वो फिर हमें फिर वापस उन्हें एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर देना पड़ेगा फिर से उनको अलग अलग करने के लिए। अच्छा ओके फॉर द डे, वी आर डन फॉर द डे। बाकी के डाउट्स व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछो या फिर जूम लेक्चर में। बाय रुद्र।